14 day class 14. I would like to join verb. This sentence lets someone know what you would be interested in doing. This can be a physical, mental or verbal action. Here are some examples. यहाँ कुछ उदाहरण है. I would like to answer that question. मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा. I would like to compete in a cooking contest. मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहूंगा. I would like to explain myself. मैं अपने आप को समझाना चाहूंगा. I would like to invite you over. मैं तुम्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहूंगा. I would like to practice. मैं अभ्यास करना चाहूंगा. I would like to become a doctor. मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा. I would like to see you more often. मैं तुम्हें कई बार देखना चाहूंगा. I would like to thank you. मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगा. I would like to learn about animals. मैं जानवरों के बारे में जानना चाहूंगा. I would like to meet the president. मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहूंगा. Future continuous tense. Attitude as a little thing that makes a big difference. नजरिया एक छोटी सी चीज है जो बड़ा अंतर डालती है. शालू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी. शालू will be waiting for you. वह अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर जाने से मना कर रहा होगा. He will be forbidding her wife to go to her mother's home. उसकी पत्नी इसे हल्के में नहीं लेगी. His wife will not take it lightly. यह उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगा. This will create a difference between them. जोजो कार चला रहा होगा. जोजो will be driving a car. 10 साल बाद अवियन भी बाइक चलाने की जिद कर रहा होगा. Avian will also be insisting to drive bike after 10 years. Gatekeeper उसे अंदर जाने से रोक रहा होगा. Gatekeeper will be forbidding him to go inside. दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा होगा. The shopkeeper will be shutting down his shop. हम इंग्लिश सीख रहे होंगे. We shall be learning English. मंत्री नए मॉल की आधारशिला रख रहे होंगे. The minister will be laying stone for new mall. सारे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे. All children will be going to school. अपने बर्थडे पर वह गाना गा रही होगी. She will be singing a song on her birthday. कल हम इस समय चोटीला मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे. We shall be climbing stairs of Chotila Mandir at this time tomorrow. क्या इस क्षण USA में वर्षा हो रही होगी? Will it be raining in USA at this moment? हर्ष अपने पापा की मदद कर रहा होगा. Harsh will be helping his father. क्या अवियन अपने बर्थडे पर चल रहा होगा? Will Avian be walking on his birthday? सभी नेता बिल पर चर्चा कर रहे होंगे. All the leaders will be discussing the bill. सभी पार्टियां अपनी अपनी योजना बना रही होगी. All the parties will be making their own strategy. नेता दूसरों की ताकत का आकलन भी कर रहे होंगे. The leaders will also be assessing others' strength. यह एक दिमाग का खेल है. It is a mind game. आम आदमी अपने कल के बारे में सोच रहा होगा. Common man will be thinking about his future. क्या नेता भी आम आदमी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे? Will the leaders also be discussing about common man? एक आदर्श देश में ऐसा होता है. It happens in an ideal country. क्या हमारा देश आदर्शवाद को तवज्जो दे रहा होगा? Will our country be giving weightage to idealism? नई पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचेगी? What will new generation think about us? क्या हम उनका भविष्य खराब कर रहे हैं? Are we spoiling their future? हमें अपनी नई पीढ़ी के बारे में बहुत कुछ करना है. We are to do many things for our new generation. रविवार को मिताली वार्षिक परीक्षा दे रही होगी. मिताली will be taking the annual examination on Sunday. मुझे रवि को एक पुस्तक देनी है. मैं हमेशा भूल जाता हूँ. I am to give a book to Ravi. I always forget about it. चिंता मत करो. अब मैं समय समय पर आपको इस बारे में याद दिलाता रहूंगा. Don't worry. Now I shall be reminding you about this off and on. इसके अलावा मैं आपके हर काम में सहायता करूंगा. Besides this, I shall assist in all your deeds. मैं रजनी के घर जा रहा हूँ. क्या वह इस समय सो रही होगी? I am going to Rajni's home. Will she be sleeping at this time? आजकल वह ऑफिस जाती है और ठीक सुबह 5 बजे उठ जाती है. Nowadays she goes to office and gets up sharp at 5 o'clock in the morning. वह अंकित के लिए कॉफी बना रही होगी. She will be preparing coffee for Ankit. रजनी और अंकित दोनों अपने पापाजी की बातें ध्यान से सुन रहे होंगे. Both Rajni and Ankit will be listening carefully the talks of their papaji. वह एक अनुभवी डॉक्टर है. He is an experienced doctor. सुनाने के लिए उनके पास बहुत सी मनोरंजक बातें हैं. He has number of interesting instances to recite.
मैंने कल उसे प्राणायाम के टिप्स दिए हैं। आई गेव हिम टिप्स ऑन प्राणायाम yesterday. वह रोजाना प्राणायाम करता रहेगा। He will be doing प्राणायाम daily. वर्तिका अपने दादाजी से बात कर रही होगी। वर्तिका will be talking to her दादाजी। दादाजी उसकी उंगली पकड़कर सैर को जा रहे होंगे। दादाजी holding her finger will be going for a walk. दादी जी उसके लिए गुड़िया ला रही होगी। दादी जी will be bringing a doll for her. एक टीचर क्लास में सो रही थी। A teacher was sleeping in the class. बच्चे चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहे थे। Children were quietly reading their books. एक बच्चा टीचर के पास गया और बोला, मैडम क्या आप सो रही है? A student went to teacher and asked, Madam, are you sleeping? मैडम जागी और बोली, नहीं मैं सो नहीं रही थी, मैं तो भगवान से बातें कर रही थी। Madam awoke and said, I was not sleeping. I was talking with the God. अगले दिन वह स्टूडेंट क्लास में सो गया। Next day, the student slept in the class. टीचर बच्चे के पास गई और बोली, क्या तुम क्लास में सो रहे हो? The teacher went to the student and asked, Are you sleeping in the class? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बस भगवान जी से बातें कर रहा था। The student replied, No, I was not sleeping. I was just talking with भगवान जी। टीचर ने स्मार्टली स्टूडेंट से पूछा, भगवान जी क्या कह रहे थे? The teacher smartly asked the student what भगवान जी was telling. बच्चा भी स्मार्ट था। उसने जवाब दिया, भगवान जी कह रहे थे कि कल मेरा मौन व्रत था और मैंने किसी से बात नहीं की। The student was also smart. He replied, भगवान जी was telling that yesterday I was on tacit fast and I did not talk with anybody. क्या टीचर उसे मारेगी? Will the teacher beat him? क्या वह स्टूडेंट टीचर से कुछ सीख पाएगा? Will that student learn something from the teacher? क्या टीचर उसे बार बार देखती रहेगी? Will the teacher be noting him time and again? आप तेज है परंतु अपने बड़ों से स्मार्ट व्यवहार मत करो। You are smart but do not behave smart with your seniors. हमारे बच्चे भी हमारी भावनाओं की इज्जत कर रहे होंगे। Our children will also be giving respect to our emotions. इस विषय पर समाज में एक लंबी चर्चा चल रही होगी। A long discussion on this subject will be going on in the society. मैं इस विषय पर कभी कभी लिखता रहूंगा। I shall be writing on this subject now and then. इज्जत दिलाती है। Respect begets respect. Fruits name फलों के नाम। Pomegranate, अनार, sapodilla, चीकू, watermelon, तरबूज, muskmelon, खरबूजा, raspberry, रसभरी। Antonyms and synonyms विलोम और समानार्थक। Finish complete, समाप्त करें पूरा। Formerly previously, पूर्व पहले। Fortunate lucky, भाग्यशाली lucky। Fun entertaining, मजा मनोरंजक। Function operate, समारोह काम। वेजिटेबल नेम सब्जियों के नाम। स्पिनच, पालक, टैमरंड, इमली, टर्नप, शलजम, बीट, चुकंदर, एरम, अरवी कुइया। स्पाइस यूटेंसिल्स फूड ग्रेन्स स्पाइस बर्तन अनाज। रेड पेपर, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वॉलनट, अखरोट, चेस्टनट, अखरोट, कैसिया, तेजपात। इंपॉर्टेंट वर्ड्स महत्वपूर्ण शब्द। बॉल, गेंद, बनाना, केला, बैंक, बैंक, बार, बास्केट, थैला, बास्केटबॉल, बेट, नहाना। मोस्ट कॉमन फ्रेजेस, नियर द बैंक के पास, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, नीड्स टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो, आई एम अमेरिकन, नहीं, मैं अमेरिकी हूँ, नो, थैंक यू, नहीं धन्यवाद, नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, नहीं, ये पहली बार है, नो, नहीं, nobody is helping us, कोई भी हमें मदद कर रहा है, nobody is there right now, कोई भी अब ठीक है, nonsense, बकवास है, not recently, हाल ही में नहीं है, not yet, अभी नहीं, nothing else, और कुछ नहीं, now or later, अभी या बाद में। Most common words सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द और शब्दावली। napkin, narrow, secure, natural, कुदरती, near, पास, nearby, पास वाला, necessary, जरूरी, neck, गला, necklace, हार, need, जरूरत, neighbor, पड़ोसी, never, कभी नहीं, new, नया, newspaper, अखबार, next, अगला, nice, अच्छा, nice।